बीच में आना तुम्हें फोन तुम्हारा सामने आ रहा है। ನಮ್ಮ ರಾಘವಾರ ವಾರ್ಡ್ ಎಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ರಾಘವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಆಫೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ MLA ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಜನರ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಫೀಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊದಲಿಂದ 2008ರಿಂದ ನಾನು MLA ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಸ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸತಿ MLA ಆದಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ MLA ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಕೈದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರೇನೋ ವಾಲಂಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, DA ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, DA ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ NGO ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಅದು ಸಮೇತ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಸಮೇತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಲೇಜು ಸಮೇತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಬರೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಮೇತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್? ಯಾವ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಪುರ ಯಾವುದು ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಬಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಡದಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ HBR ಅಲ್ಲಿ 40 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ತಮಗೆ ಜಾಗದ ಒಂದು ಇದೆ, ಹಳೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ये पूरा रेवेन्यू पॉकेट कोसे के ज़माने में कौन किया है, लेआउट डाल कर चले गए, आधे से ज़्यादा डेडेड रोड आ गए।
15 साल पहले ऐसी हालत थी, पैदल जाना मुश्किल था। सांप के आने के बाद यूजडी का काम, कावेरी का काम, रोडा को कांक्रीट तारा डालने का काम मुकम्मल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो पार्क के सिलसिले में पूछे है, यहाँ जगह की तंगी की वजह से यहाँ तो नहीं है। अब जो वार्ड नई डिलिमिटेशन में आपको है, उसमें फॉरेस्ट का एक हिस्सा हमला लग रहा है आने वाले दिनों में, और उसके बिल्कुल सामने स्पेशल हॉस्पिटल रेडी हो रही है, जो मेरे हिसाब से वाटरी टाउन से लगभग तुम्हारे हेगड़े नगर तक नहीं है इतिहास में, उस हिसाब से हो पाएगी। अब हमारे एरिया में ज़रा कामा में पीछे नहीं करके बोले तो उस सिलसिले में भी सांप की मौजूदगी में एक बात बोला तो अगर हमें PDA लेआउट पे अगर कोई DC कन्वेंशन हो कैसे लेआउट पे तो 30-40 में एक घर होता है, हम 5-6 में रहते हैं। हमारे एरिया का मसला क्या है मेरे को बोले तो 10 सड़ी की जगह में ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड 3 घर रहती है। वहाँ पॉपुलेशन कैसा बढ़ता है कैसा होता है, एक वो परेशानी है। दूसरा, पिछले हमारे जो साबिक़ कॉर्पोरेटर कलीम साहब थे, उन्होंने कोशिश से काम कर को ही मैं 1 साल से वार्ड प्रेसिडेंट मन को देख रहा हूँ, काम करना कितना मुश्किल से हुआ। उन्होंने 10 साल जेल को कोई अभी यहाँ देखे तो हालात इंशाल्लाह पहले की बनिस्बत कामा हो कोई आगे और भी हो रही है। साहब उनके तरफ से जो हमारे वास्ते कर कोई वो बात तो मैं दोहराना चाहता है। उर्दू स्कूल 48 लाख रुपए जो एक है कि प्राइवेट स्कूल नहीं वो हिसाब की है, उर्दू स्कूल वहाँ रेडी करेगा। नीचे HBR में वो भी हमने जम किया, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड वो 8000 स्क्वायर फीट में बन रहा है। आने वाले दिनों में वो कॉलेज भी बनाने की बात साहब के जहन में कर ले वो जा रही है। नीचे एक मदरसा है, वहाँ बच्चे हिफ्स कर रही हैं। ऊपर यल्लम्मा टेम्पल का काम चल रहा है, उसमें साहब का ताउन है। यहाँ नीचे चर्च के पास एक मसान का काम साहब उनके पर्सनल कंपनी से करा दे रही। पिछले दिनों जो महामड़े जो बड़ी बारिश हुई थी, उसमें अरबी कॉलेज के कांपाउंड का एक ये पूरा रेवेन्यू पैकेट कोसे के ज़माने में कौन किया है, लेआउट डाल को चले गए। आधे से ज़्यादा डेडेड रोड आ गई। 15 साल पहले ऐसी हालत थी, पैदल जाना मुश्किल था। सांप के आने के बाद यूजडी का काम, कावेरी का काम, रोडा को कांक्रीट तारा डालने का काम मुकम्मल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो पार्क के सिलसिले में पूछे है, यहाँ जगह की तंगी की वजह से यहाँ तो नहीं है। अब जो वार्ड नई डिलिमिटेशन में आपको है, उसमें फॉरेस्ट का एक हिस्सा हमला लग रहा है आने वाले दिनों में, और उसके बिल्कुल सामने स्पेशल हॉस्पिटल रेडी हो रही है, जो मेरे हिसाब से वाटरी टाउन से लगभग तुम्हारे हेगड़े नगर तक नहीं है इतिहास में, उस हिसाब से हो पाएगी। अब हमारे एरिया में ज़रा कामा में पीछे नहीं करके बोले तो उस सिलसिले में भी सांप की मौजूदगी में एक बात बोला तो अगर हमें PDA लेआउट पे अगर कोई DC कन्वेंशन हो कैसे लेआउट पे तो 30-40 में एक घर होता है, हम 5-6 में रहते हैं। हमारे एरिया का मसला क्या है मेरे को बोले तो 10 सड़ी की जगह में ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड 3 घर रहती है। वहाँ पॉपुलेशन कैसा बढ़ता है कैसा होता है, एक वो परेशानी है। दूसरा, पिछले हमारे जो साबिक़ कॉर्पोरेटर कलीम साहब थे, उन्होंने कोशिश से काम कर को ही मैं 1 साल से वार्ड प्रेसिडेंट मन को देख रहा हूँ, काम करना कितना मुश्किल से हुआ। उन्होंने 10 साल जेल को कोई अभी यहाँ देखे तो हालात इंशाल्लाह पहले की बनिस्बत कामा हो कोई आगे और भी हो रही है। साहब उनके तरफ से जो हमारे वास्ते कर कोई वो बात तो मैं दोहराना चाहता है। उर्दू स्कूल 48 लाख रुपए जो एक है कि प्राइवेट स्कूल नहीं वो हिसाब की है, उर्दू स्कूल वहाँ रेडी करेगा। नीचे HBR में वो भी हमने जम किया, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड वो 8000 स्क्वायर फीट में बन रहा है। आने वाले दिनों में वो कॉलेज भी बनाने की बात साहब के जहन में कर ले वो जा रही है। नीचे एक मदरसा है, वहाँ बच्चे हिफ्स कर रही हैं। ऊपर यल्लम्मा टेम्पल का काम चल रहा है, उसमें साहब का ताउन है। यहाँ नीचे चर्च के पास एक मसान का काम साहब उनके पर्सनल कंपनी से करा दे रही। पिछले दिनों जो महामड़े जो बड़ी बारिश हुई थी, उसमें अरबी कॉलेज के कांपाउंड का एक साहब बगैर देखे के उनके CSR फंड से पर्सनल फंड से करा को दिए। अब तक उन्होंने जाको देखे नहीं, काम कंप्लीट हो गया। भाई दीवार कितनी कांपाउंड हाइट कितना मालूम है, 17 अड़ी पूरे 7 अड़ी अंदर 10 अड़ी ऊपर पूरे पिल्लर को बना को 300 कामा हो रहा है। छोटी मोटी कोरता की है, उसे हमें भी दूर करने की कोशिश कर रही। हमारे पार्टी के सारे लीडर उसमें लगभग ही इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अब यत्ता करें और ज़्यादा आगे करेंगे। आखिर में आने वाले इंतखाबात को लेकर एक बात बोल को मेरी बात में ख़त्म करता हूँ। यहाँ हमें चल रही सो नाजुक दौर से
हमें यहाँ से हमारे जार साहब को जिताले को लेने को निकलना सर। पिछले दिनों में हमें गलती करे थे क्या, जमीर साहब को भी सांगली आना साहब को लाखों 15 साल से हमें एमपी सीट छोड़ ली, ये बात जरा ध्यान में रख लियो। साहब बगैर देखे के उनके CSR फंड से, पर्सनल फंड से करा को दिए। अब तक उन्होंने जाको देखे नहीं, काम कंप्लीट हो गया भाई। दीवार कितनी कंपाउंड हाइट कितना मालूम है, 17 अड़ी, पूरे 7 अड़ी अंदर 10 अड़ी ऊपर पूरे पिल्लारा दाल को बना को दिन सो काम हो रहा है। छोटी मोटी कोरता की है उसे हमें भी दूर करने की कोशिश कर रही। हमारे पार्टी के सारे लीडर उसमें लगो ही इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अब यत्ता करें और ज़्यादा आगे करेंगे। आखिर में आने वाले इंतखाबात को लेकर एक बात बोल को मेरी बात में ख़त्म करता हूँ। यहाँ हमें चल रही सो नाजुक दौर से, हमें यहाँ से हमारे जार साहब को जिताले को लेने को निकलना सर। पिछले दिनों में हमें गलती करे थे क्या, जमीर साहब को भी सांगली आना साहब को लाखों 15 साल से हमें एमपी सीट छोड़ ली, ये बात जरा ध्यान में रख लियो। करने गए कर तो बोले तो सारी रोटी की ख्वाहिश में आधी रोटी भी गंवा लेती, हालात बहुत खराब है। जार साहब भाई हमें बचको ही, इनकी ताकत है, हमें कामा कर लेगी यानी पूरे मोहल्ले में अमन सुकून है। खुदा ना खास्ता यहाँ से करंट बंद होगा, हमना लोगों को बहुत परेशानी आती है आने वाले दिनों में। मैं सबसे आपके चैनल के दिल से दरख्वास्त करो, इल्तिजा करो, आने वाले इंतखाबात में जिस तरह पिछली मरतबा जार साहब को अक्सरियत के साथ जिताए थे वैसा जिताने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन करने गए कर तो बोले तो सारी रोटी की ख्वाहिश में आधी रोटी भी गंवा लेती, हालात बहुत खराब है। जार साहब भाई हमें बचको ही, इनकी ताकत है, हमें कामा कर लेगी यानी पूरे मोहल्ले में अमन सुकून है। खुदा ना खास्ता यहाँ से करंट बंद होगा, हमना लोगों को बहुत परेशानी आती है आने वाले दिनों में। मैं सबसे आपके चैनल के दिल से दरख्वास्त करो, इल्तिजा करो, आने वाले इंतखाबात में जिस तरह पिछली मरतबा जार साहब को अक्सरियत के साथ जिताए थे वैसा जिताने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।